Recording in progress. Hello, good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, am I audible properly to all? Yes, बच्चे सबको ma'am. दे रहा है सेम है ठीक से? ओके. Yes, let us see this thing, बच्चे. So how are you? Are you all of you are fine? Okay. ऐसे दिल्ली का हाँ दिल्ली का मौसम तो बहुत अच्छा हो गया. गर्मी से सबको मिल गई तो अब तो I think we can take it as a positive sign for all of us. So let us start with the topic. So कल तो पढ़ा था आप सबने पॉइंटिंग थ्योरम समझ में आया था? Yes. आ गया था? ओके. अभी देखो बच्चे विदाउट पेन एंड पेपर नो नीड टू अटेंड द क्लास. अगर इफ यू वांट टू अटेंड द क्लास देन कम विद द पेन एंड पेपर, देन कुछ आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है? सो लेट अस सी क्योंकि ये टोटली आपका न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड टोटली मैथमेटिकल. ठीक है? सो दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड दिस इज मैथमेटिकल. सो सारे चीज जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ जो टॉपिक लिखना है ऐसे उसी चीज को लिखते लिखते जाना. ठीक है? Now we are discussing the Maxwell's equations of this electromagnetic theory. There are 4 equations of Maxwell, and now we'll discuss the propagation of electromagnetic wave in free space. So what do you mean by electromagnetic wave? सबसे पहले बोलो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे तो हमने पहले डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं. अभी बताओ व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बोलो. Now discuss the propagation of electromagnetic wave in different medium. 3 मीडियम है. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे with free space. ठीक है? Then non-conducting और dielectric medium, then conducting medium. ठीक है? अभी बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सबको पता है. ठीक है? यही इक्वेशन 4 ही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही डिस्कस कर रहे हैं. Now we discuss this thing that how this इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. पहले बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? कैन एनीवन? सबको तो आता है ये चीज, कोई ये न्यू चीज नहीं है. पहले आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लास अटेंड किया नहीं किया, सबको आता है ये. बोलो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? Ma'am, the wave which is produced by the simultaneous vibration of electric wave, electric field as well as magnetic. यस. ओके. तो आस्था सही बोला या कोई गलत बोला?
हाँ बोलो, एनीवन? अरे बोलो कुछ भी। हाँ कबीर बोलो। हाँ बोलो। अरे कुछ तो बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वेरी कॉमन टॉपिक, आप पहले से क्लास 12 से पढ़ के आ रहे हो जिस चीज को। Okay, so what do you mean by electromagnetic wave? As we know, that is the continuous variation of electric field vector is producing magnetic field, that is indicated by the third equation, and continuous variation of the magnetic field vector is producing electric field, that is continuous variation of the electric field vector produces variation of the magnetic field vector, and this continuous variation of the electric field vector E, magnetic field vector H produces electromagnetic wave. If as you know क्या होता है, कोई चीज अगर disturbance है, then that we are saying that new wave is producing. Now here what is disturbing? That is the electric field vector is vibrating, magnetic field vector is vibrating, accordingly we are getting the electromagnetic wave. ठीक है? So how this electromagnetic wave, पहले heading दे दो, propagation of electromagnetic wave in free space, how it is propagating in free space. ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले बोला था मैंने आपको, whatever topic we are going to start, we have to write the 4 equations. ठीक है? So what are the 4 equations of Maxwell? What are the 4 equations? That is del dot E equals to rho by epsilon naught, Gauss law for electric field. Del dot B equals to 0, that is Gauss law for magnetic field. Third is your Faraday's law, del cross C equals to minus del V upon del T, and then del cross H equals to J plus del D by del T. Note down these 4 equations. Again, इसको बार बार लिखना ही पड़ेगा. ठीक है? इनकेस लॉन्ग क्वेश्चन होता है, देन आपको एवरी टाइम स्टार्ट करोगे, देन आपको 4 इक्वेशंस as it is for, जैसे पहले पढ़ा था, चाहे वो पॉइंटिंग थ्योरम हो, any medium of propagation, you have to write these 4 equations. Okay, then 4 इक्वेशन लिख लिया, छोटा छोटा इक्वेशन, आई होप आप सबने लिख लिया होगा. देन इसके साथ दिस सिंबल्स वी नो दैट D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E. ठीक है? D क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन E, and this is B equals to mu H, and this is J equals to sigma E. B क्या है पता है? H क्या है पता है? J क्या है पता है? E तो पता है. ओके, J क्या है? What is J? What is B, H and J? इनका how they are represented? इसको क्या कहते हैं? And what is sigma here? Sigma is the conductivity of the medium. J equals to sigma I. J is the current density and sigma is the current conductivity of the medium. And D equals to epsilon E, epsilon and mu. Epsilon का क्या कहा जाए? That is the permittivity of the medium, and mu is the permeability of the medium. Sigma is the conductivity of the medium. ठीक है? So when we are saying electromagnetic wave, abhi this is for any medium is characterized by 3 things. One is mu, epsilon and sigma. Okay, any medium is characterized by conductivity, permeability and permittivity. Now what is our medium of concern here? क्या medium है यहाँ पे? और medium क्या है? हमने consider किया है free space. Free space के लिए epsilon का value कितना होता है? बताओ. What is the value of epsilon? Permittivity of the medium for free space कितना होता है? कितना होता है? epsilon naught. Permeability कितना होता है? mu naught. कितना होता है epsilon naught का वैल्यू? बोलो, ये पता है सबको? mu naught का वैल्यू कितना होता है? अरे बोलो, epsilon naught का वैल्यू क्या है? फ्री स्पेस का permeability and permittivity कितना होता है? अरे बोलो. हाँ शिव कुमार बोलो, कितना होता है epsilon and mu naught का वैल्यू? यस शिव कुमार बोलो.
हाँ असीमा बोलो, कितना होता है एप्सिलॉन म्यू नॉट का वैल्यू? यस बेटा बोलो। क्या सबको याद नहीं, सब भूल गए? हाँ आरुषि बोलो बेटा। हाँ चैतन्य बोलो, बताओ वैल्यू। हाँ चैतन्य बताओ, क्या सबको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? हाँ am I audible or not? हाँ धृति, हाँ धृति, धृति क्या किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? मैम हाँ am I audible or not? हाँ हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? यस मैम। तो मैम अब साइलेंट नोट की वैल्यू इज 8.85 into 10 raised to power minus 12. यस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है म्यू नॉट का वैल्यू? मैम 4.10 की माइनस 7। ओके 4.20 पर -7। ओके चलो ये सब चीज याद है, इसको याद तो रखना पड़ेगा। सो नोट डाउन दिस 4 इक्वेशंस। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दिस मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमें क्या है 4 इक्वेशंस आते हैं एंड यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। पहले आपने 4 इक्वेशंस तो लिख लिया है, अभी यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जहाँ पे अगर हमने ये इक्वेशन यूज किया है फॉर फर्स्ट लॉ, गॉस लॉ के लिए डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, उसको हम डेल डॉट ई के फॉर्म में लिखेंगे, बी को एच के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे भी बी को एच के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे डी को यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एच ओनली। ओके सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम फॉर फ्री स्पेस कितना होता है? 0। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट, म्यू का वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इनका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ फ्री स्पेस का तो 0 होता है एंड रो क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, दैट इज आल्सो 0 ऑफ द मीडियम। ठीक है सो दिस इज अ चार्ज फ्री स्पेस, मतलब हम इसको ये एज्यूम करते हैं यहाँ पे देयर इज नो चार्ज। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाएगी? डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो रो का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे देन फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाएगी? डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0। लिखो अभी ये तीनों वैल्यू लिख लिया, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन, बी इक्वल्स टू म्यू एच, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये आपने लिख लिया। 4 इक्वेशंस के बाद ये लिखो, देन ये लिखो फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, sigma equals to 0, conductivity equals to 0 and charge density equals to 0. Now we have to write the Maxwell's equations. अब special case लिखेंगे for this particular free space. How you can write these equations? That is del dot E equals to 0, del dot B equals to 0, del cross E equals to minus mu naught del H upon del T, and this is del cross H equals to epsilon del E by del T. कैसे आया? फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया? रो इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन यहाँ पे h करेंगे बेटा, मैंने शायद इधर b लिख लिया, इसको h कर लो, डेल डॉट h इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे इसका तो कुछ काम नहीं है, खाली लिख लो डेल डॉट h इक्वल्स टू 0। थर्ड में क्या आएगा? डेल क्रॉस c इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल t ऑफ b के बदले में क्या लिखेंगे? म्यू h। ठीक है, म्यू h मतलब म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू नहीं म्यू नॉट h, दैट इज b इक्वल्स टू म्यू नॉट h, एंड यहाँ पे म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट del h upon del t। ओके एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? j इक्वल्स टू सिग्मा ई, डेल फोर्थ इक्वेशन का फॉर्म क्या बनेगी? डेल क्रॉस h इक्वल्स टू j प्लस डेल d अपॉन डेल t, एंड j का वैल्यू कितना है? j इक्वल्स टू सिग्मा ई।
सिग्मा कितना है होता है फॉर दिस फ्री स्पेस, दैट इक्वल्स टू 0. So first term of this equation will be equals to 0 plus del by del t of d. d को क्या लिखेंगे? We have to write this d equals to epsilon e, and epsilon we have to get out of the differential, so we'll get this as epsilon del e upon del t. This term is equals to 0, so this term will be equals to epsilon del e upon del t. ठीक है? So this four equations का form अभी आ गया. So this is the Maxwell's four equations in free space. First is del dot E equals to 0. Second is del dot H equals to 0. And third is del cross E equals to minus mu naught del H upon del T. Del cross H equals to epsilon naught del E upon del T. ठीक है? 4 equations आ गया. लिखो अभी ये फॉर्म 4 equations को पहले लिख लो. अभी इसमें चलेंगे आगे आगे. इसके थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को लेके हमारी वेव इक्वेशन आएगा. वेव इक्वेशन आने के बाद फिर हम ये कैसे प्रोपेगेट होता है, उसका वेव नेचर, ट्रांसवर्स नेचर, कैसे परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर टू द डायरेक्शन प्रोपेगेशन, बहुत कुछ इसमें आएगा. ठीक है? अभी देखो इक्वेशन 3 एंड 4 को देखो. अभी हम क्या करेंगे, लिखो अभी टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3. इसमें एक एक जो भी लाइन भी आएगा उसको भी लिखोगे, वरना समझ में नहीं आएगा कि हम क्या स्टेप यूज करेंगे. टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3. कर्ल मतलब क्या होता है? डेल क्रॉस ई ऑफ दिस इक्वेशन 3. मतलब इस इक्वेशन का दोनों साइड से डेल क्रॉस करेंगे, दैट इज डेल क्रॉस ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डेल क्रॉस ऑफ आरएचएस. सो ये क्या आ जाएगी? इक्वेशन 3 इज डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी. नाउ लेट अस राइट दिस एज डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल क्रॉस ऑफ म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी. सीधा हमने यहाँ पे खाली डेल क्रॉस ऑपरेट कर दिया है. ठीक है? तो दिस इज ऑपरेट, डेल क्रॉस ऑपरेट कर दिया है. देन यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये तो खाली हमने डेल ऑपरेट कर दिया. अभी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द एलएचएस. नाउ यू कैन सी दिस इज डेल क्रॉस ई. ओके, सो दिस इज एन आइडेंटिटी. वहां पे हमने डिस्कस किया था तो वो तो अभी भूल जाओ, अभी यहाँ पे लिखो. जहां पे डिस्कस किया था उसको बैक देखने की जरूरत नहीं है. We can say that is del cross A or E of any vector is, for any vector E we can say del cross E equals to del of del dot E minus del square E. ठीक है? This is gradient of divergence of this vector minus del square E. Okay? अभी यहाँ पे देखो in this sequence, फिर से इसको देखो. ये क्या है? del cross E equals to del of del dot E minus del square E. So this is an identity. इसको याद करके ही लिखोगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. अभी यहाँ पे क्या है? del dot E क्या है? del dot E is your first equation. del dot E का वैल्यू कितना है? 0. लिखोगे यहाँ पे. This is from equation 1. We are having del dot E equals to 0. So this equation का फॉर्म क्या बन जाएगी? This is, ये टर्म तो 0 हो गया. So del cross E, that is LHS को हम क्या लिखेंगे? This is minus del square E. ठीक है? This is minus of del square E. So LHS क्या बन गया? Minus of del square E. अभी इस इक्वेशन को, इस फॉर्म जो आया यहाँ पे, इसको हमने in this equation यूज किया. वही चीज को लिखा है, that is this term becomes minus del square E. So you can write minus del square E equals to minus of mu naught of, यहाँ पे देखो इक्वेशन फॉर्म में क्या है? del cross of all this whole term. del cross of this whole term मतलब यहाँ पे क्या है? mu naught बाहर आ गया. यहाँ पे हमने क्या लिखा? del cross of del H upon del T. कुछ नहीं, खाली कांस्टेंट को बाहर ले लिया. del cross upon del H by del T. अभी यहाँ पे ये del क्रॉस जो है, अभी हम इसको क्या करेंगे? डेल को अंदर ले लेंगे, डेल क्रॉस को अंदर ले लेंगे. दैट इज ये जो दोनों डिफरेंशियल को इंटरचेंज कर लेंगे. डेल भी एक डिफरेंशियल है, डेल बाय डेल टी इज अनदर डिफरेंशियल. सो हम इसको इंटरचेंज करके क्या लिखेंगे? दिस इज डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस एच. ठीक है? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है ना? चले आगे. ये कैसे हुआ, समझ में आया? ओके, अभी यहाँ पे क्या आ गया? माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट
del by del t of del cross h. अभी del cross h का वैल्यू क्या है? What is the value of del cross h? Del cross h का वैल्यू फॉर फ्री स्पेस फोर्थ इक्वेशन में कितना लिखा है? That value equals to epsilon naught del E upon del T. Epsilon naught del E upon del T. So इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे? That is minus mu naught del by del T of value of this quantity del cross H equals to epsilon naught del E upon del T. ठीक है? From using fourth equation. ये रेफरेंस देके लिखना. ठीक है? सारी चीज आप रेफरेंस देके लिखोगे. Minus mu naught epsilon naught del E by del T and del E by del T. Del by del T of del E by del T. तो यहाँ पे फिर सेकंड डेरिवेटिव आ गया. That equals to del square E equals to mu naught epsilon naught and this is mu naught epsilon naught del square E upon del T square. ठीक है? So we got this equation and similarly just जैसे हमने थर्ड इक्वेशन का कर्ल लेके किया है, just taking कर्ल ऑफ द इक्वेशन 4. कर्ल ऑफ द इक्वेशन 4 मतलब इस इक्वेशन का इधर से डेल क्रॉस करेंगे, इधर से डेल क्रॉस करेंगे तो ये सेम फॉर्म में विल गेट वन इक्वेशन. यहाँ पे देखो इन दिस इक्वेशन जो फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन, यहाँ पे h नहीं है, वी गॉट ओनली एन इक्वेशन फॉर E ओनली. सिमिलरली अगर हम टेकिंग कर्ल ऑफ द डेल क्रॉस ऑफ दिस इक्वेशन 4 इफ यू टेक, देन व्हाट वी गेट? वी कैन गेट दिस वैल्यू सिमिलर इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर h इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर h अपॉन डेल t स्क्वायर. यहाँ पे कोई E वाला आएगा नहीं. That is we are getting one equation containing only of the electric field vector and other containing magnetic field vector. So we got two equations. So ये कैसे हुआ? फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन इज जो डेल क्रॉस h इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल t. So यहाँ पे डेल क्रॉस करेंगे, यहाँ पे भी डेल क्रॉस करेंगे, तो क्या आ जाएगी? टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, डेल क्रॉस h इक्वल्स टू डेल क्रॉस ऑफ डेल d अपॉन डेल t that equals to del cross of epsilon naught del E by del t. क्यों? d का वैल्यू हमने क्या? epsilon naught del E by del t. epsilon naught को बाहर ले लेंगे, del cross को अंदर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी? This is del by del t of del cross E. ठीक है? So del cross E का वैल्यू कितना पुट करेंगे? वही इक्वेशन 3, del cross E equals to minus mu naught del H upon del t. So we have to put this value of del cross E equals to minus mu naught del H upon del T. ठीक है? और यहाँ पे देखो, so ये RHS का वैल्यू कितना आ गया? That is ये mu naught है, ये epsilon naught है, ये भी mu naught constant बाहर आ जाएगा. We got mu naught epsilon naught minus del square H upon del T square. ठीक है? LHS RHS का वैल्यू इतना आ गया. अब let us see the LHS. LHS में क्या है? Taking curl of this equation 3 मतलब 4 that is del cross h, del cross h का वैल्यू कितना है? अभी ऊपर बताया था, this is an identity, that is del of del dot h minus del square h. So del dot h कितना है? Del dot h from our second equation. This is your second equation. मैंने आपको बोला था इसको b नहीं h लिख लेना, क्योंकि b equals to mu h, mu ऐसे कांस्टेंट है, ये साइड 0 है तो इसका वैल्यू आ जाएगी del dot h. So del dot h का वैल्यू कितना है? We can get value of del dot h equals to 0, that equals to minus del square h, or we can write del square h equals to mu naught epsilon naught del square h upon del t square. ठीक है? So we got equation 8 and equation 7. ठीक है? Del square E equals to mu naught epsilon naught del square E upon del t square. And this is del square h equals to mu naught epsilon naught del square h upon del t square. These two equations, अभी ये दोनों equations को हम compare करेंगे with the general form of the wave equation. So general form of the wave equation क्या है? That is del square psi equals to 1 by v square del square psi upon del t square. अभी psi क्या है? अभी हम second unit में पढ़ेंगे. Psi is the represented as wave equation. So general form of the wave equation क्या होता है? Del square psi equals to 1 by v square del square psi upon del t square. So what is v? V is the velocity of the wave and psi is the wave function. किसी भी wave के लिए हम ऐसे हम
लिख सकते हैं। अभी देखो अगर हम ये इक्वेशन 8 के साथ इक्वेशन 9 को कंपेयर करेंगे देन क्या आएगी, साई के बदले में क्या है एच है, एंड वी के बदले में 1/v² के बदले में क्या है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे भी एच है। सो वी कैन से दिस इक्वेशन 8 इज द वेव इक्वेशन फॉर द magnetic field vector H. Equation 8 is the wave equation of the magnetic field vector H, and this equation is the, अगर उसके साथ कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 9 we can say this equation 7 is the wave equation of the electric field vector E. Okay, अगर इक्वेशन 7 इक्वेशन 8 को कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन 9 देन हमारे पास क्या आ गया वैल्यू 1/v² इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1/v² इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी बताओ म्यू नॉट का वैल्यू अभी मैंने पूछा था सबको, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा था, सबको याद है? नहीं याद है तो ये तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे देन एक बार करो, इसको करके निकालो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर पुट करेंगे देन वी का वैल्यू कितना आ रहा है, करो करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, फटाफट पुट करो बताओ वी का वैल्यू बताओ। वी का वैल्यू कितना होगा 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बताओ वी का वैल्यू कितना आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वैल्यू वी यू आर गेटिंग? ये तो मैंने वैल्यू लिखा नहीं किया नहीं, आप सब खुद करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। म्यू नॉट का वैल्यू सबको आता है 4.10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है अभी भी बताया था धृति ने, पुट करो एंड निकालो। बताओ थोड़ा सा एक्सरसाइज दिमाग का, हाथ का एक्सरसाइज। कितना आया वैल्यू, कितना आएगा? v इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट का वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करो एंड मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। व्हाट वैल्यू आर गेटिंग? अरे बोलो। आया बच्चे किसी का? हाँ बच्चे, एनीवन गॉट द वैल्यू ऑफ दिस v 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट? बताओ, सिंपल चीज है, दो वैल्यू आए तो इतना तो कैलकुलेशन आता है, बनता है करने का। कितना है बोलो? मैम 5.5 के अराउंड आएगा। हम सी की वैल्यू आएगी क्या? सी आ जाएगा क्या वैल्यू? हाँ हाँ सी ही आएगी बेटा। 3 × 10⁸। हाँ 3 × 10⁸ आया? कहीं पे पावर में या फिर किस में कन्वर्ट कर दिया? परमिटिविटी का वैल्यू कितना है बताओ? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 की -12। हाँ 8.85 × 10⁻⁻12 होता है ना? यस मैम। हाँ 8.85 × 10⁻⁻12 एंड इसका वैल्यू कितना है 4.10⁻⁷। अभी करोगे 12 एंड 7 ऐड करोगे तो कितना, और बाकी इसका वैल्यू जो भी आ रहा है देखो -12 प्लस -7 तो हो गया ये -19। ओके, अगर इसको ऊपर ले लोगे तो देन कितना आ जाएगी, ऊपर अंडर रूट निकालोगे तो 9 के फॉर्म में 10⁹, बाकी नीचे आएगा कुछ कुछ डेसिमल में, देन उसको करोगे तो 2.98 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 2.98 की फॉर्म में इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना आया v इक्वल्स टू, ठीक है सबका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, क्योंकि एक बार कर लोगे ना ये याद आ जाएगी, क्यों न्यूमेरिकल में ये सब बहुत यूज होता है, फटाफट ये कन्वर्शन आ जाता है। ठीक है, तो कितना आया बेटा अभी ये देखो, दिस इज v इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 4.10⁻⁷, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85। अगर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे देन कितना आएगा
3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड दैट इक्वल्स टू सी। 2.98 के फॉर्म में कुछ आएगा जिसको हम 3 ले लेते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ट्रेवल लाइक वेव्स इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट सी। ओके, क्योंकि ऐसे हम पहले पिछले सेमेस्टर में हमने पूरा ऑप्टिक्स में लाइट को हमने पढ़ा था कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इसका पोलराइजेशन देख के कैसे ये वाइब्रेट करता है, कैसे फील्ड वेक्टर ई एंड एच परपेंडिकुलर होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। एंड इसका वेलोसिटी सी, दैट इज ए कॉमन नॉलेज से हमें ये पता है। सो ये वही चीज को अभी यहाँ पे हमने दिखाया, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ट्रेवल लाइक वेव्स इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट सी, ठीक है, ये आ गया। अभी ये खाली वेव इक्वेशन का फॉर्म आया है, अभी इसके अंदर और बहुत कुछ है जिसको हम लिखेंगे। अभी ये वेव इक्वेशन का फॉर्म कितना आ गया, डेल स्क्वायर ई, जो हमने यहाँ पे लिखा था कितना, दैट वैल्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन लिखा था। म्यू नॉट एप्सिलॉन के बदले में क्या लिखेंगे, 1/c, ठीक है, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन इक्वल्स टू c आ रहा था, सो इसका वैल्यू आएगा 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन के भी कंपेयर करके इसको ऐसे भी देख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू c है, देन यहाँ पे आपका c स्क्वायर आ जाएगा। इधर मैंने इन दोनों को एक साइड ले लिया तो इधर माइनस आ गया, उधर उस इक्वेशन में इसको जीरो करके लिखा था। तो किसी बुक में किसी फॉर्म में दिया होगा, इसमें देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, वी गॉट दिस टू इक्वेशंस 10 and 11 क्या है, one is the electromagnetic wave, this is a wave equation for E, this is wave equation for H, ठीक है, दो इक्वेशन we got now। अब ये जो इक्वेशन हमारी आगे ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जनरली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा जाता है इसका सॉल्यूशन। सो लेट अस राइट द, इस यहाँ से लिखो बच्चे फिर, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, अभी लिखो यहाँ से। Let us write the plane wave solution of the above equation। एक का इक्वेशन क्या है, इन स्पेस एंड टाइम। देखो डेल जो है, डेल स्क्वायर क्या है, डेल को हमने डिफाइन किया था आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई प्लस जे के डेल बाय डेल जेड, डॉट ऑफ द सेम डेल, तो क्या आ जाएगी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। डेल इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हेन दिस डेल विल ऑपरेट ऑन डेल बाय दिस ऑफ दिस डॉट में अगर ऑपरेट करेंगे देन इसका वैल्यू कितना आ जाएगी, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। इसको मैंने लिखा नहीं इधर, पर ये आपको डाउट है तो इसका वैल्यू लिख लो, कि वो उसको ओपन करके लिखेंगे, बाद में लिखा है उसको, थोड़ा एक पेज के बाद वो फिर से आएगा। सो डेल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर लिखा नहीं, डेल का वैल्यू लिखा है डिटेल, ठीक है, डेल स्क्वायर आप लिख लो, समझ लो, कल लिखा मतलब पूरा ये नहीं करना, बहुत कंफ्यूजन होगा, पूरा अगर ओपन करके लिखोगे ना इक्वेशन में फिर कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। डेल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दैट इज डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इनटू ई बाय 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतना पहले फॉर्म हमारी आ रहा है। सो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे डेल स्क्वायर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट, and t यहाँ पे this is time। So this is a differential equation which contains the position coordinate x, y, z और space coordinate and time। So हम इसका जो solution लिखेंगे, we have to write the solution of this equation in the form of this E R E, मतलब ये जो solution आएगा, ये equation है, इसमें variable हमारी E है, तो इसका अगर solution देखेंगे E equals to क्या है, that is a function of space coordinate and time। तो फॉर एक्स वाई जेड के लिए जैसे हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ऐसे हमने लिख लिया आर, फॉर द आर स्टैंड्स फॉर ऑल द स्पेस कोऑर्डिनेट एंड अनदर टी। सो ई इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी, दैट इज स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। एंड इसका फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, दैट इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। सो ये क्या है, कोई भी वेव का हम क्या लेते हैं, एक एम्पलीट्यूड फैक्टर आता है, एक फेज फैक्टर आता है। सो दिस इज द फेज फैक्टर and this is the amplitude factor, and this is HRT equals to H naught exponential I, same form, K dot R minus omega t। ठीक है, अभी इसको यूज करके फिर इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन का आएगा, डेरिवेशन लेंदी है, ठीक है। पहले इसको देख लो, स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे। ये दोनों पहले इसको सॉल्यूशन को डिफाइन कर लो, दो इक्वेशन
10 11 सोल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशंस आर 12 एंड 13. ठीक है, ये ऐसे दोनों का सोल्यूशन आपने डिफाइन कर लिया है. अभी यहाँ पे देखो हमने एक चीज लिखा है क्या, के. व्हाट इज के? अभी के का एक न्यू टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है. ओमेगा तो पता है, ओमेगा क्या होता है, सबको तो पता है वेव में क्या आता है, ओमेगा आता है. ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो उसी के फॉर्म में, जो नॉर्मल वेव के फॉर्म में यहाँ पे एक चीज आ गया, क्या है, के. सो के को हम क्या कहते हैं, के इज नोन एज द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. अगर हम के यहाँ पे देखो के डॉट आर लिखा है, मतलब आर इज द पोजिशन वेक्टर, के इज द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. हियर बोथ आर टू वेक्टर्स. सो के इज द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. सो अगर हम इसको डिफाइन करो बच्चे, पहले ये दोनों इक्वेशन अभी लिख लिया होगा, अभी सीधा लिखो. हियर के इज द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. सो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर में हम क्या लिखेंगे, दैट इज के. वेक्टर के को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ के, जनरल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एन इज द यूनिट वेक्टर एंड मॉड के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ऐसा तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नॉर्मल वेक्टर नोटेशन. ओके, हाँ, कैन एनीवन सेंड मी अटेंडेंस, अटेंडेंस सेंड कर दो बच्चे. ओके, अभी देखो पहले लिख लिया, के को अभी डिफाइन करेंगे. के का क्या होता है, जब हम मॉड के देखो वेक्टर के फॉर्म में उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. देन जब मॉड के लेते हैं जनरली उसको हम कहा जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड बाकी एन तो यूनिट वेक्टर है. mod that is vector k equals to mod k into n, value of mod k equals to 2 pi by lambda. and so इस mod k को हम अभी लिखेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखो that is 2 pi by lambda. अभी यहाँ पे 2 pi, यहाँ पे क्या है, न्यू मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे लैम्डा के साथ न्यू मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 2 pi न्यू अपॉन लैम्डा न्यू. कोई इसका, but that is multiplying dividing nu on the numerator denominator. So कितना आ गया, we are getting this value equals to 2 pi nu upon lambda nu. So 2 pi nu equals to omega and lambda v equals to n lambda for any vector, that is nu lambda. and यहाँ पे क्या पुट किया, v. For any wave we know that velocity speed equals to lambda into nu. So 2 pi nu equals to omega. Okay, nu is the frequency. So frequency into wavelength equals to velocity of the wave, omega by v. And for this particular case, as we are considering it is in the free space, हमारे value क्या आ गया, that equals to omega by c. And this is one of the important relation जिसको कहा जाता है dispersion relation. ठीक है, and for any vector, any wave we can write this relation. Okay, so हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, omega k equals to omega by c. ठीक है, k इक्वल्स टू के का भी कुछ कुछ फॉर्म आएगा, के का बहुत यूज आएगा इसमें, तो अभी इसको थोड़ा सा समझ लो. तो कितना होगा यहाँ पे, k इक्वल्स टू ओमेगा बाई सी. हाँ बेटा, 1 मिनट के बाद आप सब ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा टॉपिक है, आगे चलेंगे तो इस चीज को समझ जाओगे, वरना फिर से शुरू से बहुत पहले फिर रिपीट करना पड़ेगा. ओके, सो मॉड k इक्वल्स टू ओमेगा बाई सी. नाउ लेट अस सी दिस थिंग, वेक्टर के. अरे वेक्टर के क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे k डॉट आर. ओके, k डॉट आर है, अभी k डॉट आर का वैल्यू भी निकालेंगे. k इज अ वेव प्रोपेगेशन वेक्टर. सो वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के के जेड. आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में वेक्टर जैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. नाउ व्हाट इज योर आर, आर क्या है, आर जनरली स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर. R generally stands for position vector. So position vector में आपका वैल्यू कितना आएगा, ix plus jy plus kz. So इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे देन क्या आ जाएगी, ले लो डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगी, आई टर्म में एग्जिस्ट करता है, जे आई टर्म, जे टर्म, के टर्म, तो कितना आ जाएगी, के एक्स एक्स प्लस के वाई
Recording in progress. So देखो बच्चे, am I audible? Yes, ma'am. So this is k dot r equals to kxx plus kyy plus kzz. Okay. अभी यहाँ पे k dot r का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे? We have to put this in k dot r कहाँ पे लिखा है? वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन लिखा था, ठीक है? So you can see in this, suppose ERT लिखेंगे, that equals to E naught exponential I k dot r minus omega t. So k dot r का वैल्यू कितना होगा? So what you have to उसको पुट कर दो, ठीक है? Just put this value, that is kxx plus kyy plus kzz minus omega t. So this is E naught exponential I k dot r minus omega t, and यहाँ पे भी that equals to क्या लिखोगे? E naught exponential I kxx kyy kzz minus omega t, and similarly in this case also. एक ही बार पुट करके थोड़ा समझेंगे, ओके? थोड़ा सा समझना है, पर इसको पूरा इसमें बहुत सारी चीज आएगा जिसको आपको मैं बता दूंगी, पर इसको करने की जरूरत नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये करने की जरूरत नहीं, आप याद करके इसको लिख सकते हो। अभी बताओ, वी गॉट द फॉर्म ऑफ E इक्वल्स टू दिस। E का फॉर्म ये आ गया kxx kyy kzz माइनस ओमेगा t। अभी क्या निकालेंगे? डेल डॉट E। डेल डॉट E कितना होगा? किसी को कोई आइडिया आ रहा है? डेल का वैल्यू क्या है? डेल का वैल्यू क्या है? दैट इज डेल बाय डेल एक्स जेड डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक है? एंड दैट इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। हाँ बच्चे, सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? आस्था, ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, इसको आपके पास नोट्स तो है, इसको देख लेना, पर इसको कभी भी करने की जरूरत नहीं, खाली एक बार देख के समझ लो कि क्या हो रहा है। डेल डॉट ई अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगी? आई डेल बाय डेल एक्स। अभी ई का भी 3 कंपोनेंट है, ठीक है? जो एम्पलीट्यूड प्लेन में, एम्पलीट्यूड को हम 3 डायरेक्शन में देखेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा? आई ई एक्स ई नॉट एक्स ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल आई के एक्स एक्स के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे ई नॉट को भी हमने एक्सपांड करके लिखा, एंड के डॉट आर को भी इस फॉर्म में लिखा। ई नॉट को भी हमने जैसे वेक्टर लिखा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है? अभी डेल डॉट ई निकालेंगे तो क्या है? डेल डॉट ई इक्वल्स टू आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस होल थिंग and this whole thing. Totally del by del x will operate on this thing. And again क्या है? देखो, del by del x इसके साथ ऑपरेट करेगा, del by del y इसके साथ ऑपरेट करेगा, del by del z भी इसके साथ ऑपरेट करेगा, ठीक है? सो इसको अगर हम देखेंगे, i del by del x of this, ये पहले i खाली x को देखो, x को हो जाएगा तो y में भी वही चीज आएगा। अभी x अगर इसके साथ ऑपरेट करेगा, देन x खाली x वाले टर्म के साथ ऑपरेट करेगा, है ना? x तो y वाला टर्म में ऑपरेट नहीं करेगा, y वाला टर्म को कांस्टेंट लेके हम बाहर ले लेंगे, तो उसको हम विल टेक दिस, ये टर्म को डेल बाय डेल x ऑफ दिस
एंड दिस अगर हम यहाँ पे करेंगे आई डॉट आई वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, आई डॉट जे वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, आई डॉट के वाला टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली आई डॉट आई। आई डॉट आई में क्या आएगा, दिस इज ई नॉट एक्स, एंड यहाँ पे ये जब डेल बाय डेल एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, टी इज कांस्टेंट, जेड इज कांस्टेंट, वाई इज कांस्टेंट, ये सारे एज इट इज रहेंगे, बाकी एक्स ही ऑपरेट होके क्या आ जाएगी, आई के एक्स आपका बाहर आ जाएगी। ठीक है, ई नॉट एक्स के एक्स ये बाहर आ गया, एंड यहाँ पे जे जो है ये जे भी आपका डेल बाय डेल वाई के साथ अटैच्ड है, अभी सेकेंड टर्म जो है, सो दिस इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड ऑपरेट करेगा, देन दिस इज डेल बाय डेल वाई विल ऑपरेट ऑन ऑल दिस थिंग्स, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जे डॉट जे टर्म एग्जिस्ट करेगा, आई टर्म 0 के टर्म 0, सो जे के साथ कौन सा टर्म हटा से, एक्सपोनेंशियल टर्म हटा से, एक्सपोनेंशियल का जब डिफरेंशिएट करते हैं देन क्या आता है, एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज रहता है, बाकी इसके साथ जो वेरिएबल टर्म वो फिर बाहर निकल के आता है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज iota i, this is iota i and this is your I cap, ठीक है, so this is I ky आएगा, kx तो कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे देन यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस इज I ky आ जाएगी बाहर, तो इसके इसमें हमने क्या लिख सकते हैं, दिस इज E नॉट y ky, एंड दिस इज जब डेल बाय डेल z आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज E z kz, ठीक है, दैट इज E नॉट z kz एक्सपोनेंशियल I kzx प्लस ky y प्लस kzz माइनस ओमेगा t, ठीक है, ये टर्म एज इट इज बाहर निकल जाएगी, सभी में ये टर्म बाहर निकल जाएगी, फिर कंबाइन करेंगे तो x वाले टर्म के साथ ये टर्म आएगा, y वाले टर्म के साथ डिफरेंशिएट होने के बाद क्या आया था, ये वाला आया था, z वाले टर्म के साथ डिफरेंशिएट होने के बाद क्या आया था, ये वाला टर्म आया था, ठीक है, ये हमने जो लिखा था दिस टर्म E नॉट z kz, तो इन सबको अगर कंबाइन करके लिखेंगे क्या आ जाएगा, दैट इज E नॉट x kx, E नॉट y ky, दैट इज E नॉट z kz। ये बताओ अभी जैसे हमने k एंड x को लिखा था, अगर उसी फॉर्म में लिखेंगे देन क्या आ जाएगी, दिस इज k e डॉट k या फिर k डॉट e करेंगे देन क्या आ जाएगी, I के x प्लस j के y प्लस k के z डॉट ऑफ दिस थिंग, एंड इसको हमने फिर से k डॉट r लिख लिया, दैट इज k डॉट r माइनस ओमेगा t, सो इसको हम क्या लिखेंगे, ये कंबाइनिंग, दिस इज E नॉट I k डॉट r ओमेगा t, दिस वैल्यू इक्वल्स टू I k डॉट e, और वी कैन राइट डेल डॉट ई इक्वल्स टू आई के डॉट टी, ठीक है, ये मैंने इतना सारा जो लॉन्ग डेरिवेशन आपको बताया, अब सोच रहे हो क्यों बता रहे, ये बताने का मकसद है कि दैट इज डेल डॉट ई का जो वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आई के डॉट ई, सिमिलरली डेल डॉट एच का वैल्यू जो आएगा आई के डॉट एच, डेल क्रॉस ई का भी निकालेंगे इन द सेम फॉर्म, वो आ जाएगी आई के क्रॉस ई, डेल क्रॉस एच निकालेंगे तो आ जाएगी आई के क्रॉस एच, ठीक है, और ये आपको कभी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने खाली आपको समझा रही थी कि खाली इसको ओपन करते करते लिख के जाओगे तो अपने आप इसका टर्म आ जाएगा, पर इसको करने की जरूरत है नहीं, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डेल डॉट ई का वैल्यू कितना है, आई के डॉट टी, कैसे होता है, कोई कंफ्यूजन है, भूल गए, देन आपको इसके थ्रू देखना पड़ेगा, ठीक है, डेल डॉट ई इक्वल्स टू आई के डॉट टी, देन डेल डॉट एच इक्वल्स टू आई के डॉट एच, ये दोनों चीज हमारी आई, अभी इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, समझ में कुछ आया, हाँ बच्चे कुछ तो बोलो, आया नहीं आया समझ मैम आ गया, हाँ बोलो आ गया, ठीक है, किसी को नहीं आया तो इसको फिर देख लेना, नहीं है तो कल पूछ लेना अगर कहीं पे किसी डाउट है, ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ाने का टॉपिक नहीं है, तो क्लासरूम में बहुत पूरा घिस के लिखना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में, फिर भी आप लोग एक दो बार इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये एक हो गया ना 3 मीडियम का सेम फॉर्म में, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है, सो लेट अस एंड द मीटिंग, टाइम हो गया, ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ।